کھائیے جی۔ ماضی کے تمام نظریہ ضرورت کے فیصلوں کو دفن کر دیا اور آئندہ آنے والے وقتوں میں قیامت تک اب نظریہ ضرورت کا کوئی سہارا نہیں لے سکے گا۔ یہ نہ کسی کی ہار ہے نہ یہ کسی کی جیت ہے، یہ انصاف کی جیت ہے، یہ آئین کی جیت ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے، یہ 22 کروڑ عوام کی جیت ہے اور یہ عدلیہ کی جیت ہے، جنہوں نے صرف اور صرف میرٹ کو سامنے رکھ کر اور حالات کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ دیا۔ ہم عدالت عظمیٰ کے بہت شکر گزار ہیں اور آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک سنہرے حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ اور اس بیٹل میں، یہ جو لیگل بیٹل جو لڑی گئی ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ اپوزیشن کے تمام پارٹیز کے ہیڈز، ان کے کولیگز، ان کے ساتھیوں نے اور وہ اتحادی جنہوں نے حق سچ کی بات کرنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ آ ملے، وہ انڈیپینڈنٹس جو پارلیمان میں بطور انڈیپینڈنٹ کے بیٹھے تھے، انہوں نے حق گوئی کے لیے ہمارا ساتھ دیا، اور وہ ریبلز جنہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پہ انہوں نے سچ کو سچ کہا اور غلط کو غلط کہا، ہم ان سب کا اپنا فرداً اور اجتماعاً شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلا مرحلہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے مطابق اب ووٹ آف نو کانفیڈنس اب دوبارہ فیلڈ میں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اپنی اجتماعی قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مرحلہ کامیابی سے طے کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوگا، اس کا بھی عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں شارٹ آرڈر میں لکھ دیا ہے، وہ لیڈر آف دی ہاؤس کے چناؤ کا، وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم اس کو طے کریں گے، اور پھر ہم سب مل کے مشاورت کے ساتھ اس ملک کی جتنی بھی حد المقدور خدمت کر سکتے ہیں، غربت، بے روزگاری، ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے، چاہے وہ صوبہ سندھ ہے، چاہے وہ صوبہ بلوچستان ہے، چاہے وہ صوبہ KPK ہے یا پنجاب ہے، اور وہ ملینز غریب عوام جن کو دوائی نہیں ملتی، جن کو ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ہمارے کاندھوں پہ یہ بوجھ آن پڑا ہے، اور انشاءاللہ ہم مل کر جس طرح یہ مراحل ہم نے طے کیے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم کامیابی سے طے کریں گے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میاں صاحب یہ بتائیے سوال میں آ جائیں۔ میاں صاحب، اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایوان سے مستعفی ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اور دوسرا، اگر صوبوں میں کوئی گورنر راج لگانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس پر آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ دیکھیے، دو باتیں ہیں۔ ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت صدق کے دل کے ساتھ اور بالکل ان اے ویری کینڈیڈ وے کہ ہماری ڈکشنری میں لفظ وکٹمائزیشن نہیں ہے، یعنی جو انتقام کا لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ قانون، انصاف اپنا راستہ اپنائے گا، اور یہ نہ غیب کا علم ہمیں ہے نہ نیب کا علم ہمیں ہے۔ البتہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کو ہم توڑ کے رہیں گے انشاءاللہ، جس نے پاکستان کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ دوسری جو آپ نے سوال کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر PTI والے استعفیٰ دیتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس ایوان کو، ایوان کے جو سنہری روایات ہیں اس کے مطابق چلانے کے لیے حد المقدور کوشش کریں گے، اینڈ پوری کوشش کریں گے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے سوال آ جائے گا۔ ان سے سوال کریں۔ سما ٹی وی سے میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ کی وزارت وزیر اعظم بننے میں کوئی رکاوٹ باقی ہے، اور اگر جب یہ آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کو دعوت دیں گے بطور اپوزیشن لیڈر کے جو اصلاحات کرنی ہے ان کو ساتھ لے کے چلا جائے گا؟ گزارش یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میں ان تمام اکابرین کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو
नामज़द किया। मैं अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी पार्टी का। तो ये इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा तो ये मरहला तय हो जाएगा। रही बात कि कोई रुकावट है, तो जादू टूना तो हराम है बिल्कुल, और वो हर हवाले से हराम है। तो इसलिए वैसे भी अगर कोई जाली और जादू टूना था वो यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के वैसे भाग रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये भी कुदरत का निज़ाम है। ये बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि हम रिफॉर्म्स के लिए पार्लियामान में तमाम पार्टियों से रुजू करेंगे, ताकि मुल्क को यह एहसास हो कि इसमें सबकी जो आवाज़ शामिल है। बिलावल साहब सवाल करें, इनसे सवाल करें। बिलावल साहब, मैं समझता हूँ आज की ये शब शुक्र का तकाजा रखती है, और शुक्र इस बात का कि अल्लाह ताला ने हम पर और हमारी कौम पर अपनी निज़ाम इंसाफ और अदालतों पर हमारा इत्मीनान और यकीन बढ़ाया है। ये एक तारीख़ी फ़ैसला था जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के ऐवान को, इस पूरे निज़ाम को, मईशत और माशरत सब के हक़ में ये फ़ैसला गया है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि नई आने वाली क़यादत एक ऐसा पाकिस्तान देगी जिसमें पाकिस्तान के तमाम लोगों को, तमाम ज़बान बोलने वाले, तमाम इलाकों में रहने वालों को बराबर का वफादार और बराबर का हकदार समझा जाएगा इंशाअल्लाह। और बार कौंसिल का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो सही वक्त में सच के साथ खड़े रही, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें मौका दिया कि तारीख के सही वक्त में हम तारीख के सही सिमत में खड़े थे। हम एक मिनट, तमाम लॉयर्स, तमाम पार्टीज़ के लॉयर जो हैं, PMLN के, पीपल्स पार्टी के, JUI के, BNP मैंगल के, ANP के, और दर्जा बदर्जा जितने भी हमारे इत्तेहादी हैं, उनके लॉयर्स ने जिस अनथक मेहनत से काम किया और शानदार दलाइल दिए हैं, हम सब उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उनका मैं समझता हूँ कि इस बैटल को जीतने में बड़ा हाथ है। एक सेकंड बिलावल साहब बोल रहे हैं, बिलावल साहब के बाद। अब मैं शहबाज शरीफ साहब मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से और पूरा पाकिस्तान को एक बार फिर मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। और जैसे हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और जल्द इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये जीत हमारा जीत नहीं है, ना किसी एक आदमी का शिकस्त है, ये पाकिस्तान की आइन का जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, ये जमहूरियत की जीत है। और इस जीत की वजह से इंशाअल्लाह ताला हम जमहूरियत के बहाली की तरफ बढ़ेंगे, हम मीडिया की आज़ादी को बहाल करेंगे, हम पाकिस्तान के अवाम को उनका अपना मुआशी हकूक़ दिलवाएंगे, और मिल के एक ऐसा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे ताकि जब हम इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो वो साफ शफाफ इलेक्शंस हो, और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जिनके पास अवाम के मैंडेट हो वो अवाम के मसाइल का हल निकालें। अच्छा मियां साहब ये बताइएगा कि यहाँ का तो आपने बता दिया, सुबह पंजाब दावर साहब बोलना, एक मिनट, दावर साहब बोलना नहीं, आपको जाना बस यहाँ से होते हैं बस बहुत निकलनी चाहिए, नहीं हमारी आवाज़ निकलती है। खैर मैं सबसे पहले तो सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जो तारीख़ी फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और 3 तारीख़ को बेशक जो हुआ वो पार्लियामेंट पे हमला था, वो जमहूरियत पे हमला था, वो पाकिस्तान के आइन पे हमला था, वो वफाकी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पे हमला था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला, जो तारीख़ी फ़ैसला दिया है, और उस रूलिंग को और जितने भी उनके इक़दाम थे उनको नल एंड वाइड करार दिया गया है, उनको रद्द करार दिया गया। और साथ ही साथ जिस नैरेटिव के बुनियाद पर उन्होंने वो फ़ैसला, वो रूलिंग दी थी, उस नैरेटिव को भी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो मैं सबको मुबारकबाद भी देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये बात भी यहाँ पर रखूँगा ज़रूर कि अब असल मरहला, हमारा असल इम्तहान अब इसके बाद आएगा, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मसाइल जिस लेवल तक हमारे पहुँच गए हैं, एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर है, मिलिटराइजेशन है, यहाँ पर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और कराची में और बाकी इलाकों में जो मिसिंग पर्सनस के मसाइल हैं,
इन सब मसाइल को अब हल करना होगा और उनके हल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारे ऊपर आती है और हम सब कायदीन के ऊपर आती है। तो कौम जो तवक्कुआत रखती है, उम्मीद है कि हम हमारी क़यादत, अपोजिशन की जो क़यादत है वो उस पर आने वाले वक्त में पूरा उतरेगी। बहुत शुक्रिया। जी मौलाना असद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आइन को उसका हक़ वापस दिलाया है और वो आइन जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम नज़रियात के हामिल इदारों की, पार्टियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, चाहे वो कौम परस्त हों, चाहे वो मजहबी हों, चाहे वो सेकुलर हों, लिबरल हों। हम इस आइन की बहाली चाहते हैं जो तमाम पाकिस्तान में रहने वालों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, माशी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, जमहूरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, इसके लिए हमने जदोजहद की है। आपने देखा है कि तमाम नज़रियात की हामिल ये तंजीमें मुसलसल जदोजहद कर रही थी, अपनी ज़ात पर तनकीद बर्दाश्त की है, अपनी पार्टीज़ पर तनकीद बर्दाश्त की है, लेकिन उसके साथ आज़्म मुसम्मम लेकर हम मैदान अमल में रहे हैं। आज जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने इस बात का इजहार किया और बिलावल साहब ने उसका इआदा किया कि ये किसी फ़र्द की, किसी तंजीम की कामयाबी नहीं और किसी की नाकामी नहीं, बल्कि आइन की फ़तह है, पाकिस्तान की फ़तह है, पूरी कौम की फ़तह है। जो लोग ये समझते हैं कि वो हम इस बुनियाद पर कि हमारी किसी तंजीम के साथ लगती नहीं है या हम उनसे नफ़रत करते हैं, आज पूरी कौमी क़यादत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनको दावत देते हैं कि आए, हमें मिलकर इस कौम की वहदत को यकीनी बनाना है। पाकिस्तानी कौम मुसलसल कई सालों से मुंतशिर हो रही है, मुंतशिर किया जा रहा है। हमने तमाम कौम को मुंतशिर होने से बचाना है। इस आइन के नीचे उनको एक वहदत करके उस वहदत को पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए इस्तेमाल करना है। मैं यही जज्बात रखता हूँ और अपने तमाम अकाबिरीन से कि जिन्होंने ये जदोजहद की है, इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिस तरह अपोजिशन लीडर ने आज शुरुआत में कहा कि ये किसी की आज हार या जीत का मसला नहीं है, मैं उसी बात को दोहराऊंगा और आज मेरे ख्याल से इसी बात को बार बार दोहराने की ज़रूरत है, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान को इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है। बदकिस्मती से चंद नादान दोस्तों के मशवरे से आज से चंद दिन पहले आईन पर और पार्लियामान पर हमला किया गया और पार्लियामान का मसला अदालत में चला गया। अदालत ने आज एक तारीखी फ़ैसले के ज़रिए हमेशा हमेशा के लिए नज़री ज़रूरत को दफन कर दिया और अदालती फ़ैसले से आज जमहूरियत मज़ीद मजबूत हुई है और पाकिस्तान में आईन की हुक्मरानी के लिए राह हमवार हुई है। मेरे ख्याल से इसके बाद का मरहला शायद निहायत ही अहम है, जहाँ पर हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढना है, पाकिस्तान के मसाइल को हमने हल करना है और उसके लिए सब ने अपने अपनी सियासी नज़रियात से थोड़ा ऊपर उठना होगा, अपने अपने सियासी नज़रियात और वाबस्तगियों से बालातर होकर मुल्क का सोचना होगा, पाकिस्तान का सोचना होगा, अपनी कौम का सोचना होगा। और मैं बेशक इस से मुत्तफिक हूँ कि अब तलखियों की गुंजाइश नहीं है। उस तरफ भी जो लोग हैं, उस तरफ भी जो साथी हैं जिन्होंने बदकिस्मती से हमें शायद मुल्क दुश्मन और गद्दार समझा, लेकिन हम ना उनको मुल्क दुश्मन समझते हैं, ना हम गद्दार समझते हैं, हम उनको भी पाकिस्तानी समझते हैं। और आज यही अपील इनसे होगी कि उन तलखियों को बुलाकर आए, मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने
पाकिस्तान को एक सख्त मराइल से हमकिनार किया और जैसे मेरे साथियों ने किया कि हमारा इरादा इंतकाम का नहीं है। हम यहाँ पे ये जो इकट्ठे हुए हैं एक ही नज़रिए पे हैं कि पाकिस्तान की खिदमत करनी है। 22 करोड़ आवाम को जो उन पे मुश्किलात हैं, जो मुसीबतें हैं, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल हो गई है। हमने उससे उनको निकालना है। इस मुल्क को एक ऐसी पहचान देनी है कि ये अवाम खिदमत मुल्क है, वेलफेयर स्टेट है। और मैं अपने PTI के भाइयों को भी अर्ज़ करता हूँ कि तलखियों को दूर करें, मिल के बैठें हमारे साथ। जैसे हमारे अपना कायद ने लीडर ऑफ द हाउस इंशाल्लाह होंगे, आसिफ साहब ने भी कहा कि हमारा इंतकाम का कोई इरादा नहीं है, ना हम इस बुनियाद पे जुड़े हैं। और हमें भी अल्लाह तौफीक दे कि हम इस पे पूरा उतरें, खिदमत करें। और दूसरा, मैं सारे साथियों का शुक्रगुजार हूँ, लॉयर्स का, अपने मेंबर्स का और ख़ास करके मीडिया का, क्योंकि मीडिया ने इस दफ़ा पूरी जमहूरियत दिखाई है। और जैसे दिन रात वो जागते रहे और हमें रिपोर्ट देते रहे, मैं उनका भी मशहूर हूँ। शुक्रिया जी। सरदार मेंगल साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम कायदीन को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और बिलखुसूस उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स को मुबारकबाद दूंगा जो आज तारीख़ी दिन हमें नसीब हुआ है। मैं समझता हूँ मज़लूम और महकूमों के लिए आज का ये तारीख़ी दिन या तारीख़ी फ़ैसला एक हल्की सी हमें उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही है। और यही उम्मीद रखते हैं कि ये किरण जो है आइंदा आने वाले दिनों में एक रोशनी में तब्दील होगी। और ये ना कि सिर्फ़ एक सूबे, एक ज़बान, बल्कि मुल्क भर में जहाँ मज़लूम और महकूम नाइंसाफ़ी के अंधेरों में जिनको धकेल दिया गया है, जिनके बच्चे आज दिन तक उन काल कोठरियों में, अंधेरों में हैं, उनके लिए एक रोशनी की एक नवीद साबित होगी। और इसके साथ साथ मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस दौर में, हालांकि एक महीने का अरसा था जिसमें मीडिया भी 24 आवर्स जो है ना वो अपनी रिपोर्टिंग करता रहता था, और इस तरह पॉलिटिकल पार्टी की जो अकाबरीन भी हैं, लेकिन इसके आगे जो हमारे लिए जो मराइल आएंगे वो बहुत सख्त तरीन होंगे। और आज हमने ये तय कर लिया है कि उन मराइल का भी हम बड़ी खुश असलूबी से जो उसका मुकाबला करेंगे। खुदावंद ताला से यही दुआ करेंगे कि उन मराइल को कामयाबी करने में हमारी मददगार साबित हो। मैं आखिर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये अदालती फ़ैसले ने पूरे मुल्क में ये साबित किया है कि अदालतें आज़ाद हैं और अदालतों ने तारीख़ रकम की है। इसके अलावा आप ये जानते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने जो लोगों से वादे किए, जो तब्दीली की बात की, वो महज सिर्फ बातें थीं, बातों के अलावा कुछ नहीं कर सके। और कहा कि हर किसी पे करप्शन के इल्ज़ामात उठाए, इसके अलावा कुछ नहीं कर सके। और जहाँ तक बलूचिस्तान में, सिंध में, KPK में जहाँ तक मिसिंग पर्सनस का इशू है, वहाँ इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं, उनकी बेशतर लिस्ट मेरे पास आज भी मौजूद है। और इंशाअल्लाह ताला जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मरले से गुजरेंगे, जैसे ही आज की मौजूदा अपोजिशन वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगी तो मैं डॉक्यूमेंट्स दूंगा। और वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि उनकी जल्द उनके इलाकों में वापसी हो, जिनके प्यारे लापता हैं वो अपने घरों को जा सकें। हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, हम शहबाज शरीफ साहब से भी और तमाम लीडर साहिबान से शेयर करेंगे। और इंशाअल्लाह जल्द उम्मीद रखते हैं आने वाले वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि जल्द वो कौम को इस पे खुशखबरी देंगे। मैं दो बातें कर लूँ जी। एक तो आपका मीडिया का मुकर्रर शुक्रिया कि आपने तमाम मराइल में आपने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से आपने हक़ाइक़ पूरी कौम को के सामने लेके आए। जो मराइल थे, जो मुश्किलात थी, जो चैलेंजेस थे, सब आपने अच्छी तरह कवर किए। हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा मैं पाकिस्तान बार सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने जनाब एहसन भून साहब ने, उनकी टीम ने पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ के लिए बहुत शानदार तरीके से और बड़ी यकसुई से इसमें हिस्सा लिया और आवाम की आवाज़ वो उन्होंने पहुँचाई अदालत उज़्मा में।
हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है। अब बलूचिस्तान के जो ज़ुमा यहाँ मौजूद हैं पार्लियामान में, वो मसरूफ़ हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, स्पीकर के और दूसरे तमाम मराइल। तो मेरी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश होगी कि इन इलेक्शन को जो 10 तारीख को होने जा रहे हैं, इनको मेहरबानी करके ज़्यादा नहीं तो 15-20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए मौखर कर दें, ताकि पार्लियामेंट में बलूचिस्तान की पार्टीज़, उनके ज़ुमा अपना जो आइनी किरदार जो है वो कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल आप सबसे है कि जैसा कि आपने अपनी बातों में ये फरमाया कि हम इंतकामी सियासत नहीं करेंगे, तो 3 अप्रैल को जो कुछ हुआ क्या समझा जाए कि आपने उनको माफ़ कर दिया या उनको जो आइन या कानून के कटहरे में लाया जाए? मैंने तो कहा कि आइन और कानून अपना रास्ता लेगा, उसमें मैं मुदाखलत नहीं करूँगा, ये कोई और मुदाखलत नहीं करेगा। आइन कानून अपना रास्ता लेगा।